the political system of Pakistan. Sikandar Mirza was not a good person overall. इसके टाइम पीरियड में पाकिस्तान के अंदर बहुत सी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आई बेटा. देयर वर सो मेनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एंड ड्यू टू दोज पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एंड दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वी faced lot of problems in Pakistan and one important problem was martial law. हमारी कंट्री में दुनिया की उस कंट्री को सबसे ज्यादा लक वाइज अगर देखें तो वो बैड लक कंसिडर किया जाता है व्हेन देयर इज मार्शल लॉ इन द कंट्री. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? जी बेटा. सो टॉपिक लिखें सिकंदर मिर्जा. दिस इज पार्ट सी ऑफ दिस चैप्टर. सिकंदर मिर्जा. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, just write about Sikandar Mirza. He was president for 1 year and after that 2 years and he was governor general for 1.5 years. ठीक है. Sikandar Mirza had so many problems, लेकिन इसके साथ साथ few of his domestic policies were, yes बेटा, मैं am just writing that domestic policies of Sikandar Mirza. In the domestic policies, the most important domestic policy of Sikandar Mirza was one unit scheme. Although this scheme was started earlier, but this scheme was implemented in the time period of Sikandar Mirza. तो इसलिए हम इसका credit, we give credit of this policy to Sikandar Mirza. Is it clear? Beta, what was one unit scheme? You need to know. I'm just writing that ke according to this policy, according to this scheme, all the provinces of West Pakistan, बेटा वेस्ट पाकिस्तान में कौन कौन से प्रोविंसेस थे? What were the names of provinces? Punjab, Sindh, Balochistan, Pakhtunkhwa, Gilgit. Yes, at that time it was NWFP. All the provinces of West Pakistan were merged into one unit. अब सिर्फ ये इसको ना याद रखने का सबसे आसान तरीका मैं पता क्या बताऊं आपको कि जो करंट डे पाकिस्तान है जिसमें आप रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, NWFP या KPK भी है, या सिंध भी है, पंजाब भी है. All these provinces of West Pakistan, at that time it was West Pakistan, तो वेस्ट पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस को मर्ज करके इस पूरे एरिया को क्या बना दिया? एक प्रोविंस बना दिया. There was just one province, मतलब सारे प्रोविंसेस खत्म. Now West Pakistan was just one unit. West Pakistan was just one unit. अब पाकिस्तान में टोटल कितने प्रोविंस हो गए आफ्टर 1955? 2. पहले कितने थे? 5. अब कितने हो गए? 2. There were only 2 provinces in Pakistan in 1955. So along with 10 princely states, along with 10 princely states, along with 10 princely
states. Is it clear everyone? अब इसका कोई भी लिंक है इस पॉलिसी का ईस्ट पाकिस्तान के साथ? नहीं, लेकिन इसके इंपैक्ट्स थे ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर. दिस पॉलिसी वाज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू ईस्ट पाकिस्तान, बट दिस पॉलिसी हैड lot of severe impacts on East Pakistan. So it was done to bring unity in West Pakistan, to reduce number one, it was done to bring unity in West Pakistan. Number two, to reduce financial burden and to resolve representation issue. कितने रीजंस हो गए इसको करने के पीछे? How many reasons are there for which this policy was implemented? Number one, to bring unity. What is the meaning of bring unity? What was that in unity form? कि क्यों unity नहीं थी पहले? देखिए बेटा, in Pakistan there were 4 provinces and all these provinces were culturally different. पंजाब का कल्चर सिंध के साथ नहीं मिलता, सिंध का बलूचिस्तान के साथ नहीं मिलता, बलूचिस्तान का केपी के साथ नहीं मिलता. मीन्स के all these provinces were culturally different from each other. Is it clear? जी बेटा, when there were cultural differences in West Pakistan, तो इन सारे provinces को इकट्ठा करके मर्ज करके इनके लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन अच्छी हो तो इनके दरमियान यूनिटी आ जाएगी. That was the main aim. Second, to reduce the financial burden. What does it mean? Beta, when you were running the 4 provinces, it means the 4 different capitals were there, and to run the capital, it is expensive thing. And पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि 4 अलग कैपिटल्स को रन कर सके. देखिए, आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पे भी देनी है, इसलिए इनको इकट्ठा करके एक कैपिटल बना देंगे. इट वुड बी रिडक्शन इन द फाइनेंशियल बर्डन. थर्ड, टू रिजॉल्व द रिप्रेजेंटेशन इशू. लेकिन बिफोर दैट, एवरी टाइम ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान हैड इशू ओवर रिप्रेजेंटेशन. ईस्ट पाकिस्तान हमेशा एक बात कहता था कि हमें वी नीड रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ आवर पॉपुलेशन. कि देखिए, वो कहते थे कि हमारी 56% पॉपुलेशन है तो हमें असेंबली, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में 56% सीट्स चाहिए. अब पाकिस्तान ने कहा कि हम ये डिमांड सही नहीं थी उनकी. बिल्कुल ठीक थी डिमांड, लेकिन बात यह है कि ये इशू तो था ना, वेस्ट पाकिस्तान वाज नॉट गिविंग देम. अब सर लेकिन इसमें फिर भी 1 यूनिट पॉलिसी में इसमें तो फिर भी पैरिटी फार्मूला नहीं फॉलो हुआ था. पैरिटी फार्मूला हुआ कि दोनों को हमने, अब कहा क्या, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से होशियार बनने की कोशिश की कि हम दोनों प्रोविंसेस, अब हमारे मुल्क में हम पैरिटी की बेस पे, यूनिट की बेस पे सीट्स देंगे. यूनिट मींस कि पाकिस्तान में 2 यूनिट्स हैं, 2 प्रोविंसेस हैं, 50% एक प्रोविंस से रिप्रेजेंटेशन होगी और 50% अगेन इसके ऊपर. हाउएवर दिस वाज, yes, however this policy failed. This policy failed as East Pakistan wanted seats on population basis. East Pakistan wanted seats on basis of population. जी बेटा, when we give seats on the basis of population, इसका मतलब क्या होता है? 56% ईस्ट को मिलनी चाहिए और 44% वेस्ट को. लेकिन ईस्ट पाकिस्तान को अकॉर्डिंग टू 1 यूनिट कितने परसेंट सीट्स मिली? जस्ट 50%, 50% सीटें मिली नेशनल असेंबली में. That is why they were reluctant to follow this policy. Second, there was opposition
by smaller provinces who were dominated by पंजाब के पॉलिटिशियंस सारे डोमिनेट कर गए एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम पुअर। तो कितनी रीजंस होगी इसके फेलियर की? नहीं, 3 होगी ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाउ सर मेनी? 2 नहीं है। बेटा 3 बन गई ना। नंबर 1, सबसे पहले ईस्ट पाकिस्तान की इशू, ऑपोजिशन ऑफ स्मॉलर प्रोविंसेस, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम पुअर। तो कितने पॉइंट्स बन गए? 1, 2 और 3। ऊपर कितने बन गए? 1। अदर साइड पे कितने बन गए इंट्रोडक्शन के? 1, 2 और 3। तो जहां पे भी आपके 3 पॉइंट्स बनते हैं, हाउ मेनी मार्क्स क्वेश्चंस कैन बी गिवन? 7 मार्क्स। Why Sir? was this policy introduced and why was this policy unsuccessful? So overall, what was this policy? It was a success or failure? सर फेलियर। It was a big failure. यहाँ पे लिख ले नीचे। It सर was इस पे ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वाज 1 यूनिट स्कीम सक्सेसफुल? 7 मार्क्स। how वाला नहीं आता, इसमें आता है कि सक्सेसफुल तो ये थी नहीं ना बेटा। दिस वॉज ए बिग 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 ब्लंडर ऑफ गवर्नमेंट। पता है पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पे कोई चीज खराब हो तो उसको ठीक करने में 20 साल लगते हैं। Although this policy was highly rejected by people of East Pakistan, but still this policy was implemented for 15 years in Pakistan. 15 साल तक ये बैड पॉलिसी भी पाकिस्तान में चलती रही। 1970 में ये 1 यूनिट पॉलिसी रिवर्स हो गई। या खान रिवर्स इट। इज इट क्लियर एवरीवन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Is there any difficulty? No. Second point, 1956 Constitution. Beta, 1956 Constitution was very important thing. पाकिस्तान की हिस्ट्री का अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? सेट ऑफ लॉज व्हिच आर यूज्ड टू गवर्न। सेट ऑफ लॉज टू रन ए कंट्री। तो वो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आदम, अच्छा, सेट ऑफ लॉज टू रन द कंट्री। अब यहां पे ये देखें कि इट वाज मेन फीचर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वर सर के प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर्स मिलेंगी? नहीं, पहला फीचर आप मेन लिखेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। इज इट क्लियर? What is the meaning of parliamentary form of government? Prime Minister would have the power of running the government. तो means के government का head कौन होगा? Prime Minister होगा। Yes, it was same, but it was not so clear at that time. Now, this was the policy. Both PM and President would be, yes, both PM and President would be Muslim. Third feature, Governor General was replaced with President. Governor General was replaced with President. Urdu and Bengali as national languages. Yes, beta?
सर आपने लिखा है कि इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन मैम दुर्दाना के नोट्स में तो लिखा हुआ है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी। यस बेटा, मैं अब आपको बता देता हूँ बेटा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर. फेडरल system is basically a structure of government. Clear? It's not the post related thing, it is a government structure या country's administrative structure. Parliamentary और presidential are the things के जिसमें prime minister या president के साथ associate करता है. Federal system के मतलब federal system is where there are separate provincial governments and separate सेंट्रल गवर्नमेंट. ये फेडरल गवर्नमेंट वाला सिस्टम है, वो उसमें और इसमें बिल्कुल डिफरेंट है ये चीज. यहां पे मैं भी लिख देता हूं, देयर वाज फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम. चलिए ये कर लेते हैं इसका स्टेटमेंट को, दैट वुड बी मोर इजी. इज इट क्लियर बेटा? जैना? यस सर इसमें वही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी जी, इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंटर के पास ज्यादा पावर्स थी. इज इट क्लियर? यस सर. हाँ. इसके बाद लास्ट एक और पॉइंट लिखें, बाई कैमरल लेजिस्लेचर. बाई कैमरल लेजिस्लेचर with equal powers of ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. मतलब वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने अपनी बात मनवा ही ली कि हम सीटें कितनी देंगे, इक्वल. वी विल नॉट गिव यू द सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर पॉपुलेशन. डर था ना वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को कि कहीं ईस्ट पाकिस्तान वाले हमें स्नब ना करें, इसलिए उन्होंने उनको सीट्स पॉपुलेशन से कम दी. However, this constitution was the first. This is इसका एनालिसिस पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव चीज थी कि hence it was the successful attempt. Hence it was successful policy as Pakistan government made its own constitution after struggle of 9 years. कंट्री बनने के कितने साल बाद बना? 9 साल बाद. पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. तो ये पॉलिसी कितने साल बाद हमारे लिए एक दिस इज वन ऑफ द मेजर सक्सेस. हाउएवर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्ड अलाइव फॉर जस्ट 2.5 years. 2 साल. 58 में ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म भी हो गया था. दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज एंडेड. दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज एंडेड बाय अयूब खान. क्लियर? यस. तो यहां तक हमारी ये पॉलिसी भी अब आपको समझ आ गई. बेटा 4 marks क्वेश्चन कैन बी गिवन ऑन दीज फीचर्स. कितने मार्क्स का क्वेश्चन? यू नीड टू नो 4 marks question can be given on the features of 1956 constitution. If you don't know the features, आप सफर करेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, एग्जाम के अंदर रिपीट भी हो चुका है. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स. सर ये फैक्ट सही है कि जो सिकंदर मिर्जा था वो मीर जाफर का मतलब ग्रेट ग्रैंडसन था? बिल्कुल, ग्रेट ग्रैंडसन था. वो दूर सर तो फिर इसने अपने लोगों को क्यों, मतलब ये बंगाली हुआ ना? फिर बंगाली, यस बंगाली था, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी पूरी ट्रेनिंग जो है वो गुलाम मोहम्मद ने की. क्लियर? मतलब पावर हंग्री ये गुलाम मोहम्मद की तरह था. ठीक है मानिया? इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज जी नेक्स्ट. यस बेटा. इसके अंदर वो प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फिर तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बन जानी चाहिए. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है जब गवर्नमेंट का हेड प्रेसिडेंट हो. यहाँ पे प्रेसिडेंट की पोस्ट दैट वाज जस्ट ए सेरेमोनियल पोस्ट. प्रेसिडेंट पावरलेस था. जैसे आज भी पाकिस्तान में प्रेसिडेंट की पोस्ट तो है, आसिफ अली जरदारी इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो हम इसे प्रेसिडेंशियल तो नहीं कहते. वी कॉल इट पार्लियामेंट्री बिकॉज द रियल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर.
in this constitution, though, the power had the president had the power to eradicate No. prime minister. No. So यहाँ पे हमारे पास अब अगले पॉइंट, How did you Sir, through mutual consent of the politicians by pressurizing them. Yes बेटा. सर अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था तो फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कैसे करता था? यहाँ पे वही बात, यहाँ पे एक तो 2-3 पावर्स थी. एक तो प्रोडा अभी तक खत्म नहीं हुआ था, प्रोडा वाज देयर. सेकेंडली there was a loophole in there was not the clarity of powers between the prime minister and president in this constitution. That's why president always took the edge of that thing. और एक चीज थी, पाकिस्तान में एक 1954 में एक केस आया था जिसको कहते हैं मौलवी तमीजुद्दीन केस. उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि whenever there is poor law and order situation, president could remove the government. ठीक है, उसको मौलवी तमीजुद्दीन केस कहते हैं. वो मैं कल कराऊंगा आपको कि मौलवी तमीजुद्दीन केस क्या था. व्हेन गुलाम मोहम्मद डिसमिस द मलिक मोहम्मद अली बोगरा, तो एट दैट टाइम दिस केस वाज द मेन थिंग. इज इट क्लियर? इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी के अंदर प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता था. डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी का मतलब क्या है? व्हेन इट इज द डिमांड ऑफ टाइम टू डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया जा सकता है. इज इट क्लियर? यस सर. डन हो गया. आगे चलते हैं हम लोग बेटा. 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद मॉडर्नाइजेशन एजेंडा. बेटा मॉडर्नाइजेशन, तो Mirza introduced modernization program programs. अच्छा, in which industrial, agricultural, and in which industrial, agricultural and infrastructural development was initiated by government as road network and telecom services improved. So was this thing a positive? Yes. Hence it was positive indicator of. Yes बेटा. सर बुक में और मैम दुर्दाना दोनों के नोट्स में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर लिखा हुआ है 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में. आप यूनिकैमरल लेजिस्लेचर लिखा हुआ है? जी सर. अच्छा, वो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिक्स तो नहीं कर रही आप? नहीं 1956 वाला ही चेक किया मैंने, डबल चेक किया. आई विल चेक दैट अगेन. ठीक है, मैं इसको चेक कर लूंगा. अगर फ्लॉ Okay, हुआ sir. तो मैं आई विल इन्फॉर्म. ओके, नाउ we have positive indicator of development in Pakistan because of that progression. ठीक है, this was a good thing. And the last domestic policy of Iskandar Mirza was
development of air transport. Development of air transport. Beta, air transport was improved by Iskandar Mirza. PIA was established. And the PIA was also the best in the world. Yes, it was in Ayub era. PIA was established by which person? जो कि अभी कुछ दिन पहले प्राइवेटाइज कर दिया हमने, खत्म कर दिया, गवर्नमेंट ने इसको छोड़ दिया. Yes. So PIA was established. Karachi airport was developed. New terminal in Karachi airport was developed basically. Karachi airport was already there. उसपे एक नया terminal बना दिया. So this terminal was also a good progress. Hence, it was big development in faster transportation, clear beta? So these were the main steps he took for the country. However, there were few things which he could not deliver. Like in this time period, he took steps to eradicate smuggling from. Beta, at that time there was smuggling smuggling of different products from Afghanistan. He tried to reduce that smuggling. So that is the problem जो कि आज भी हमारे country में है. That's a big problem nowadays. वो बात की बातें हैं. यहाँ पे smuggling of products जो थी, that was very common from Afghanistan border. Smuggling of different products like आपकी household की जो चीजें हैं उनकी smuggling, that was very common in Pakistan. So he took steps to eradicate smuggling, but later on he was failed to control overall. Generally अगर आप देखें तो इनमें से successful steps के अंदर you can write this one, this one, this one. But failure क्या है? He changed the governments again and again and again. Is it clear? अब इन सारी टॉपिक्स पे अब आपने कितने लीडर्स पढ़ लिए? 3 people. You people have studied the domestic policies of 3 people. कौन कौन सी आपने ओवरऑल की हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जरा आपने मुझे आप बताते जाना कि अभी तक हमने किस किस बंदे की डोमेस्टिक पॉलिसीज को डिटेल में किया. यस, ख्वाजा नाज़मुद्दीन. ओके, ख्वाजा नाज़मुद्दीन के साथ ही मैंने लियाकत अली खान करा दिया था. ए मलिक गुलाम मोहम्मद और सी क्या था? मोहम्मद अली ना सिकंदर मिर्जा. Okay. Now, what type of question can be given on these people? It would be 14 marks specifically. If 14 marks combined question on all these people can be given. Is it clear? Yes. Who introduced foreign पे इस पे कोई सवाल नहीं आता. Who introduced domestic policies? Who introduced most important domestic policies? Most important domestic policies between 1948 to 1958. बेटा आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ये 3 नाम गिवन होंगे. These 3 names would be given. Explain with reference of all of the above. Explain with reference to all
नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कितनी कितनी पॉलिसीज आपने हर बंदे की लिखी हैं? मिनिमम 4 हैं हर बंदे की आपने, यू हैव रिटन मिनिमम 4 डोमेस्टिक पॉलिसीज। बट इन दिस क्वेश्चन मेक श्योर यू नीड टू राइट 2 पॉलिसीज ऑफ ईच पर्सन आर सफिशिएंट। ठीक है, नोट क्या है, राइट 2 domestic policies of each person। अब इस चैप्टर के ना, इस पोर्शन के 7 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी आपने नहीं किए, वो हम करेंगे कल की क्लास में। लेकिन यहां तक आपने याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, जो फ्राइडे को टेस्ट होगा उसके अंदर, मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन मैंने लाजमी देना। Is it clear, online students? Chapter 11 and chapter 12 till 1948. Yes. It would be, maybe it would be 3, 5, 7, 10 or 4, 7, 14. It's my choice. Yes, beta. Ji, online students, this question is coming in your. जी बेटा, दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन योर इंपॉर्टेंट फॉर टेस्ट। जी बेटा, जी बेटा, जी जी, जस्ट राइट द सक्सेसफुल वन ओनली, दीज आर सफिशिएंट। यस बेटा, जी बेटा पूछें, हु इज आस्किंग द क्वेश्चन? यस रुबाब। सर आपने एग्रीकल्चर का टेस्ट चेक कर लिया? हाँ मैंने कर लिया हुआ है, और मैंने आपने फेस टू फेस दिया था? नहीं, ऑनलाइन दिया था। ऑनलाइन दिया था, हाँ ऑनलाइन का चेक हो चुका है। मैं यस, चेक हुए पड़े हैं, वो मुझे याद ही नहीं रहे, किसी ने पूछा भी नहीं इस दफा और मैंने भेजे भी नहीं, ये स्क्रीन पे पड़े हुए हैं सारे, चेक पड़े हैं सारे। ठीक है, तो बस मैं भेज देता हूँ, फिर मैं, मेरे ज़हन में ही नहीं रहा, मैंने सोचा कि मैंने भेज दी है, और किसी ने पूछा भी नहीं इस वीक में, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी ने पूछा ही नहीं है इसमें से इस दफा। मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ बाय द वे फेस टू फेस वालों को टेस्ट सारे। इज इट क्लियर? मैं भेज देता हूँ क्लास के। सर आप हल्की जी बेटा, थोड़ा सा अच्छा मैं स्क्रीन ऊपर स्क्रीन करेंगे। ऊपर कर देता हूँ बेटा। ये लें, ये पूरी स्क्रीन दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें जिसने लेना है। जी ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? सस्टेनेबल पावर मैनेजमेंट लिखवा दिया था यस वर्कबुक। ओके बेटा, नाउ जस्ट टेक द तीनों के बारे में लिखना है, और 2-2 पॉइंट्स हर तीनों, एक बंदे की 2-2 डोमेस्टिक पॉलिसीज बस। सर तो ये 7 पैराग्राफ नहीं हो जाएंगे? कोई मसला नहीं है, खैर है, इसमें जाने देते चलेगा, क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है और इतना समराइज करना पॉसिबल नहीं है। सर हम इस तरह नहीं कर सकते कि मलिक गुलाम मोहम्मद का एक पैराग्राफ ही बना रहे हैं, उसमें सारे पॉलिसीज हैं। जी बेटा, जी जी, आप इस तरह लिख लें, इट्स योर चॉइस। ठीक है, चलिए बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर